Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to talk about the power of the lens and the lens formula, and then we will be talking about the linear magnification by the lenses. राइट तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको लेंस के बारे में पता होने चाहिए बिकॉज लेंस आपको मैग्नीफाई करके इमेज देता है, छोटी करके इमेज देता है, राइट तो आपको मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए. वी गॉट टू टाइप ऑफ लेंसेज, राइट. एंड जो लेंस फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, राइट, और यू कैन कैलकुलेट द focal length, right, based on the if the image and the object distance is given to you only then, right. So basically these terms जो कि हम calculate करते हैं, we will be talking about all those things today in this lecture. Alright, so let's get ready about that. And you all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiads. तो basically ये जो lecture आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं अगर school examination को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं तब आप देख सकते हैं, राइट. इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स और गुड रैंक इन दी ओलंपियाड्स तब आप देख सकते हैं. एंड इवन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पावर इन द मैग्निफिकेशन एंड ऑल, you can watch this lecture, right. So basically you can do that, you are free to do that. So now let's move on to the thing that you are needing, and that is the study material. So to get the DBP and the study material, you are going to join our Telegram channel, that is TTB010, right. And this is the code you need to write in the search box of the Telegram app. If you write there, तो drop down list में हमारा 10th का channel appear हो जाएगा. You can join that and you can access all the DBPs and study material along with the notifications of the classes you're going to attend. Now see, this is the team which is going to help you a lot as we are putting so much our efforts into the content we are going to prepare for you all so that you can get the good marks after knowing that. And that is our main goal, and that is why these lectures are free for everyone. Anybody can watch these video lectures and they can access all the necessary information they need to crack the examination. That is the most thing you can know about the video lectures, about these video lectures. In accordance to that, we have prepared some packages for you all. So to access those packages, you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, you are going to get the two type of packages over there for every class. So for the 10th class 2, you are going to get the full package and the test series. Full package includes all the necessary things you need to gain any good marks, or you can say if you want to crack any Olympiad, you can going to need to be the necessary things, right. And these are the one, the study material you are going to get, the live classes or the recorded ones, the homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. These much things that are necessary for you all are available through this package, right. And then you can join the test series also if you want to, and you are going to get the periodic test papers, or you can say the bi-weekly quizzes and the live classes, right. So if you want to join them or buy them, you can definitely write my code CIVALIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can join or you can call us on the number 919549041111, right. So it would be so good to know about you if you call us on the number, okay. And you can definitely know about these packages, all right. Any information if you want to know about these packages, any information you want, how they are going to help you, how you can join them, and why you should even buy them, why you should even consider them, you can call us on this number, right. Now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the most thing you should promise to yourself, ठीक है. क्यों? क्योंकि revision is the thing which is going to let you the deepness of the knowledge. हम एक बार के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट हमको deepness तब पता चलती है when we revise it again and again, right. तब जाके आपको उसके अंदर की कुछ ऐसी बातें नई नई आपको अंदर पता चलेंगी सिर्फ उसी एक कंटेंट में जिसको आप बार बार स्टडी करते हैं. यू आर गोइंग टू गेट द मीनिंग बिहाइंड दैट कंटेंट, एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज आस्क्ड टू रिवाइज एनीथिंग यू स्टडी, right, to make that stick inside your mind. That is the main thing, and that is why I am telling you again to revise it, right. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 13th, दैट इज द लेंस फॉर्मूला, पावर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है. सो ये है, हम लोग 3 चीज़ें ही पढ़ने वाले बेसिकली, पावर ऑफ द लेंस, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट. अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द पावर ऑफ द लेंस. सो बेसिकली ये पावर क्या चीज़ होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट लेंस, तो एक्चुअली में ये पावर किस क्वांटिटी को या फिर किस उसके फीचर को रिप्रेजेंट करता है? सो बेसिकली हम पावर को ये बताते हैं कि कोई भी लेंस
काम क्या करता है, रेज को बेंड करने का काम करता है, राइट। मतलब अगर कोई पैरेलल रे आ रही है, किसी लेंस में से जाती है, तो फिर वो क्या कर देगा, जब वो लेंस में से बाहर आएगी तब उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो उसको बेंड कर देगा, आइदर अवे और आइदर टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग। अब ये जो पावर है वो ये बताता है कि कोई भी लेंस कितना ज्यादा लाइट की रे को बेंड कर देता है, ठीक है, कितना ज्यादा बैंड कर देता है, कितना कम बैंड कर पाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नोन एज द पावर ऑफ अ लेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर, वी टॉक अबाउट हाउ मच इट changes the path of the light ray or how much it bend the light ray actually. Alright, so that's why we defined is at it is the measure of deviation produced by a lens. तो basically कितना deviation हो गया है रे की पाथ में, कितना वो bend हो गई है, ये पता करने के लिए इसके मेजर को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पावर है इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वी राइट दिस एट द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। सो बेसिकली अगर हमें किसी लेंस का फोकल लेंथ पता है, राइट, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई उसकी पावर कितनी है, दैट वुड बी द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, वो भी इन मीटर्स, ठीक है। इसकी यूनिट, पावर की यूनिट इज द डायोप्टर, ठीक है, कैपिटल डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर। और एफ जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इन मीटर। डेफिनेट सी बात है, आपको कई बार क्या किया जाएगा, लेंसेज के बारे में बोला जाएगा कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो लेंस का एक्चुअली में अगर हम माने कि उसका फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब तुम्हें बोला गया है नाउ कैलकुलेट द पावर। सो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हो गया पहले तुम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। फोकल लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर में होनी चाहिए, तभी तुम हमेशा करेक्ट पावर को जो है लेंस की वो कैलकुलेट कर पाओगे। अगर किसी और यूनिट में होती है, जैसे कि मिलीमीटर में दे दिया आपको फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में दे दिया, ठीक है, किसी और यूनिट में आपको दे दिया, तो यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू मीटर्स, ठीक है, देन ओनली यू आर गोइंग टू राइट द पावर। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देती हूँ, यू कैन राइट दैट फॉर्मूला। ऑलराइट, सो पावर को हम कैसे लिखते हैं, पावर ऑफ अ लेंस बेसिकली, ठीक है, तो P इज गोइंग टू बी 1 अपॉन फोकल लेंथ इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड इन शुड बी इन मीटर्स, ठीक है। सो दिस is the power of a lens. You are going to put this inside a box because it should be star marked. तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, right? So this is the formula for the power. इसे नोट करो and then we will be talking about the power for different lenses. ऑलराइट, अब देखिए, हम लोगों को ये बात पता है कि लेंसेज की जो फोकल लेंथ है, हमारे पास दो तरीके के लेंस हम लोगों ने स्टडी किए, तो उन दोनों की ही फोकल लेंथ हम लोगों ने अलग अलग देखी, साइन जिनका डिफरेंट था, राइट, मतलब एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। उसके बेसिस पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पावर भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हर किसी लेंस की अपनी पावर होती है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं डायोप्टर्स जिसमें हम बोलते हैं, तो किसी का नेगेटिव डायोप्टर होता है, ठीक है, नेगेटिव 2D, -2D, -5D या फिर +6D। तो ये जो प्लस एंड माइनस साइन आ रहे हैं आपको पावर सुनने में, ये आ रहे हैं, यू कैन फाइंड इट द नेगेटिव और द प्लस साइन, यू कैन फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस कि भाई कौन सा लेंस हमने यूज किया है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको दो लेंसेज हमने बताए थे, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होती है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है, जो कि हम देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, वो कितना होता है, पॉजिटिव होता है, एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिवनेस
इसकी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव होगी। सो कभी भी अगर तुम किसी लेंस का सुनो, तुम किसी लेंस को टच मत करो, ठीक है, या फिर तुम उसे सिर्फ देखो दूर से, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो कन्वेक्स है या कनकेव, क्योंकि वो थिन लेंसेज होते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता उसके थिकनेस का और थिन का, राइट। तो आपको अगर ये बता दिया जाए कि भाई इसकी पावर +2D है, तो आप उस प्लस साइन से समझ जाएंगे कि ये कौन सा लेंस है, क्या ये कन्वेक्स है, क्या ये कनकेव है, ठीक है। तो देखो, फॉर कन्वेक्स लेंस जो पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। द रीजन इज क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होती है, एंड फोकल लेंथ जो है वो है पॉजिटिव, एंड इसका जो फोकस है वो कैसा है, रियल, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव पावर फॉर कन्वेक्स लेंस। तो अगर किसी भी लेंस का जो पावर है वो है +5D, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द कन्वेक्स लेंस, सो दैट लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। इसी तरीके से कनकेव लेंस के लिए जो पावर है वो होती है नेगेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, और हम लोग ये बोलते हैं कि इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, ठीक है। तो अब तुम्हें पावर पता चली, हाउ टू कैलकुलेट पावर ऑफ एनी लेंस जिसका फोकस आप जानते हैं, ठीक है। अब हमने ये सीखा कि भाई अगर तुम्हें कोई पावर बता दी जाए, किसी भी लेंस की आपको पावर बता दी जाए, तो यू आर एबल टू डिसाइड कि भाई ये कौन सा लेंस है, जस्ट बाय लिसनिंग टू दी साइन ऑफ द पावर। If it is plus, then the lens is convex lens, and if it is minus, then the lens is concave lenses. So minus का 4D is going to give you the convex lens, concave, sorry, minus का, right? Minus is for the concave, and whenever it is talking about like plus का 4D, you are going to get the convex lens, right? इसको भी फटाफट से नोट कर लो, ये भी important है। ऑल राइट, तो देखो तुम्हें पावर पता चला, हाउ टू कैलकुलेट द पावर, हाउ टू गेट और नो अबाउट द टाइप ऑफ लेंसेज थ्रू द पावर। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, हाउ टू गेट द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस। मतलब अगर दो लेंस या फिर दो से ज्यादा लेंसेज अगर एक के बाद थिन लेंसेज अगर हम कंबाइन करें, हाउ यू कैन गेट द पावर ऑफ दैट लेंस, किस तरीके से आप देख पाएंगे। सो देखिए, if the two thin lenses are placed in contact, the combination has a power equal to the algebraic sum of the powers of the two lenses. So basically अगर दो या दो से ज्यादा thin lenses को एक के बाद हमने उसको combine कर दिया है, ठीक है। So how you are going to get the power? दोनों की पावर को आप algebraically add कर दोगे। So the total power would be the power of first lens प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फोकल लेंथ के उसमें देखना चाहते हो कि भाई कॉम्बिनेशन क्या होगा फोकल लेंथ का, सो यू आर गोइंग टू गेट द 1/f1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड देन दी फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं वेयर f1 एंड f2 आर द फोकल लेंथ of lenses
ठीक है, एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सो बेसिकली अगर आपको बता दिया जाए कि भाई दो थिन लेंसेज को हमने वन बाय वन एक के बाद ऐसे करके उनको अरेंज कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो अब आप उसकी जो पावर होगी, टोटल कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, वो अब आप बता सकते हैं बाय एडिंग दी पावर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स लेंसेज, सॉरी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप हर एक लेंस का अगर आप पावर को एड ऑन कर दोगे तो आपको कॉम्बिनेशन का पावर मिल जाएगा विच वुड बी ग्रेटर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सम है, दोनों का सम है, दैट मीन्स दिस पावर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन P1 और P2, दोनों से ही वो बड़ा रहेगा, ठीक है। और इवन यू कैन कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/f। अगर आप f फोकल लेंथ जो है चेक करना चाहते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, देन यू कैन राइट इट 1/f इक्वल्स टू 1/f1, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस, दोनों का सम, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द कॉम्बिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट। सो बेसिकली आप इन दोनों फॉर्मूलेज को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर और द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। Alright, now let's talk about the lens formula, ठीक है। लेंस फॉर्मूले के लिए आपको, मतलब ये जो लेंस फॉर्मूला है, दिस इज सिमिलर टू द मिरर्स फॉर्मूला बट इट हैज अ साइन डिफरेंस। क्या साइन डिफरेंस है? लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equals to 1/f. So this is the lens formula. मिरर फॉर्मूले से ये कैसे जो है यू कैन से डिफरेंट है। कैसे? जस्ट बाय द साइन। यहाँ पर अगर आप प्लस लगा देंगे तो आपको मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा, और अगर आप 1/v minus 1/u लिखेंगे तो आपको लेंस फॉर्मूला मिलेगा। बेसिकली ये लेंस फॉर्मूला आपको क्या रिलेशन बता रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिलेशन आपको बता रहा है कि किस तरीके से इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस आर कंबाइंड टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वेयर v जो है दैट इज द इमेज डिस्टेंस, कि भाई लेंस से इमेज कहां बन रही है, ठीक है। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। ये आपको यू कैन से कॉम्बिनेशन बता रहा है, या फिर ये एक तरीके से आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ लेंस का कॉम्बिनेशन, उनका रिलेशन आपको बताता है ये लेंस फॉर्मूला। सो इफ अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इमेज डिस्टेंस इतना है, ठीक है, फोकल लेंथ इतना है ऑफ अ लेंस, देन यू कैन कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या फिर अगर आपको क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ हो, फोकल लेंथ दिया हुआ हो, तो you can calculate the image distance, and even if you are going to get कि भाई object distance ये है, image distance ये है, then you can calculate the focal length of a lens। तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हैं, राइट। इन तीनों में से अगर दो गिवन हो तो आप तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दी लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला जनरली यूज होता है इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने में, ठीक है, जैसे कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इतना दूरी पे रखी हुई है लेंस से तो इमेज कहाँ बनेगी,
अगर आपको फोकल लेंथ गिवन हो तो, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इसी फॉर्मूले से जनरली आते हैं, ठीक है। आपको मेनली देखो पावर में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो हमने अभी पावर सीखा, दैट इज बिकॉज इजी फॉर्मूला, राइट। आपको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पार्ट में जब हम लेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो इजी होगा, बट आपको यहाँ पे साइन पहचानना होगा। साइन पहचानने का मतलब कि भाई आपको ये साइन नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 12 सेंटीमीटर मिरर से रखी हुई है और फोकल लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर है। नाउ कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे साइन के बारे में नहीं बताया हुआ है, राइट। आपको बहुत ही ध्यान से साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए इस जो लेंस का फॉर्मूला है इसे यूज करना है, ठीक है। V, U और F इनका बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन रिमेंबर करना है। तो यहाँ पर ही टिपिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द साइन एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट, जो कि एक हार्ड पार्ट होता है। हार्ड पार्ट तो नहीं पर ट्रिकी पार्ट है, लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज रेसिप्रोकल्स में एडिशन वुड बी लाइक अ लिटिल बिट ऑफ लेंदी, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन पार्ट में नहीं है अच्छे, उनके लिए फिर वो हार्ड बन जाता है, राइट। तो बेसिकली उसके बाद जाके यू आर गोइंग टू गेट दी कॉम्बिनेशन और यू कैन गेट दी फाइनल थिंग जो भी हमको पूछने के लिए बोला है, राइट। ये यहाँ पर मेन चीज है, यहाँ पर यही कंफ्यूजन आता है। लेंस फॉर्मूले में आपको लिटिल बिट हार्डर क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। पावर जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, वो पार्ट्स में पूछा जा सकता है, लाइक 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, राइट। या फिर आपको 5 मार्क में एक पार्ट दे दिया पावर कैलकुलेट करने के लिए, वैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, राइट, इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन और यू कैन से इन दी स्कूल एग्जामिनेशन, राइट। तो ये जनरली आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चंस देगा। यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन को और मिला देते हैं उसी क्वेश्चन में तो फिर वो लिटिल बिट ऑफ ज्यादा मार्क्स का भी बन जाएगा, राइट। सो अभी तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का साइज अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसके रेस्पेक्ट में इमेज का साइज 10 हो गया है, 7 हो गया है, या फिर नेगेटिव में है, दैट मीन्स वो इन्वर्टेड है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि कितना ज़्यादा जो यू कैन से ऑब्जेक्ट जो है उसके कंपैरिजन में इमेज चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है, उसका हाइट चेंज हो रहा है बेसिकली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द लीनियर मैग्निफिकेशन। सो देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो है दैट इज गोइंग टू गिव यू द मैग्निफिकेशन। सो बेसिकली ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये आपको बताता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में इमेज बड़ी है, छोटी है, ऐसा बताता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हुआ, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो यू आर गोइंग टू गेट द बिगर वैल्यू, बिगर यू कैन से इमेज, राइट। तो अगर 1 से बड़ा हुआ वैल्यू m का तो यू आर गोइंग टू गेट द बिगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी इमेज आपको 10 मिल सकती है, 7 मिल सकती है, 12 मिल सकती है, सो इट विल बी बिगर देन द 5। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है, लाइक 0.5 या फिर 0.75, 0.25, 0.1, तो ये जो आपको छोटे वैल्यू मिल रहे हैं, 1 से छोटे वैल्यू अगर मैग्निफिकेशन के मिलते हैं तो दैट रिप्रेजेंट द स्मॉलर इमेजेस। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर की हुई तो इमेज वुड बी 4, इमेज वुड बी 3 सेंटीमीटर, 3.5, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, लाइक दैट, ठीक है। तो जब कभी भी इमेज छोटी मिलती है यानी कि मैग्निफिकेशन में हमें
इमेज जो मिल रही है वो छोटी मिल रही है, दैट मीन्स द वैल्यू इज लेस देन 1, एंड इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 देन यू आर गोइंग टू गेट द बिगर साइज ऑफ इमेजेस, राइट। तो देखो इसका फॉर्मूला, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो, दैट इज m is equals to h2 divided by h1, ठीक है, और यू कैन से हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1, दैट इज द इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट का हाइट, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। अब देखो आप मैग्निफिकेशन को, ये तो पहला फॉर्मूला हुआ जहां से आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इट इज लाइक v डिवाइडेड बाय u। मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा ही हमने मिरर, जब हम मिरर के बारे में बात कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, तभी भी हमने इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा था जहां पे हमने -v/u लिखा था। तो -v/u इज फॉर द मिरर्स एंड +v/u इज फॉर द लेंसेज, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि कब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि भाई तुम्हें कैसी इमेज मिल रही है, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग टू गेट द वर्चुअल इमेजेस, इरेक्ट इमेजेस, तो आपको मैग्निफिकेशन कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो मैग्निफिकेशन है, दिस कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और यही मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव आपको किन के लिए मिलेंगे, फॉर वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। सो वर्चुअल इमेजेस, और आपको पता है जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट तो होती है, तो बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, ठीक है। उसी तरीके से जो नेगेटिव है वो आपको मिलेगा फॉर रियल इमेजेस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, ऑलराइट। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्लस और नेगेटिव शुड बी in the other color, right? तो यहां पर मैं लिख देती हूं प्लस, ठीक है, और यहां पर मैं बड़ा सा बना देती हूं नेगेटिव। So basically magnification can be positive, negative depending on the nature of the image. So from here, by knowing the sign of the magnification, आपको पता चल सकता है nature of the image, right? So if the magnification is positive, you are going to get the virtual and erect images. If the magnification is negative, you are going to get the real and inverted images. Now यहाँ पर तो आप देख सकते हैं v by u. अगर आप यहाँ से u को eliminate कर दें by using the lens formula, ठीक है, what if you do it on your basis, ठीक है, खुद से ऐसा करना, u को eliminate करने की कोशिश करना by using the lens formula, आपको एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलेगा जो कि डिपेंड करेगा फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पे, और वो जो होगा दैट वुड बी f minus v divided by f. So this is also a formula जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है वो फॉर्मूला जो कि फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड होता है. सो इफ यू नो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड यू नो द इमेज डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन बाय दिस. ठीक है. नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि कब बड़ी ऑब्जेक्ट मिलेगी, कब छोटी ऑब्जेक्ट मिलेगी. यू कैन इवन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इमेज. आपको जैसा मैग्निफिकेशन मिल रहा है, आपको प्लस मिल रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपको माइनस मिल रहा है रियल इन्वर्टेड. अगर आपको +1 यानी 1 से बड़ा मिल रहा है तो यू आर गोइंग टू गेट द बिगर इमेजेस, और अगर आपको 1 से कम मिल रहा है मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो यू आर गोइंग टू गेट स्मॉलर इमेजेस. ठीक है. तो ये हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पता कर सकते हैं. यू कैन नो द ऑल द थिंग्स अबाउट द मैग्निफिकेशन, बट यहां पर भी आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है. राइट. V का साइन, U का साइन आपको बहुत ध्यान रखना है. जहां पर भी V और U एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वहां पर आपको उनका साइन का बहुत ध्यान रखना है. ठीक है. फटाफट से नोट कर लेंगे इसे.
ऑलराइट, चलिए अभी हम लोग जो हैं देखते हैं एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज स्टेटिंग द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज 3 times the object in size when the object is 0.12 meter from the lens. What is the focal length of the lens? So you need to calculate the focal length of the lens, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, आपको जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से गैदर करना है, ठीक है। कैसे, देखो रियल इमेज एक तो आपको बता दिया, आपको जैसे ही रियल इमेज बता दिया गया है तो आप सोच सकते हो इट शुड बी अपोजिट साइड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इट शुड बी ऑन द अपोजिट साइड। तो मतलब जो जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखी है, इमेज बन रही है लेंस के अपोजिट साइड, जहां इमेज ऑब्जेक्ट रखी है उसके अपोजिट साइड में इमेज बन रही है, ठीक है। बाय अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इट इज 3 times द ऑब्जेक्ट इन साइज, 3 गुना ज्यादा बड़ी है। नाउ यू नो द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज 3, ठीक है। यहां पे बताइए 3 times बड़ी है, दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन इज 3। तो यहां पे आपको मैग्निफिकेशन मिल गया है कितना, 3। अब हमको ये बात पता है कि कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन जो हमने देखा था भाई, हमने इसके इमेजेस पे बेस्ड पे देखा था ना कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस जो हैं वो हमें कैसा मैग्निफिकेशन दे रही है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे ये लिखेंगे -3। समझे क्यों लिखा ये -3? बिकॉज यहाँ पर हमें पता चल गया है दैट रियल इमेजेस फॉर्म एंड दैट इज व्हाई हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलेगा फॉर रियल इमेजेस, ठीक है। सेकेंड, हमें इसके बारे में पता था, कन्वेक्स लेंस के बारे में पता था, ठीक है। अब देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 0.12 मीटर फ्रॉम द लेंस, अब आपको क्या बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 0.12 मीटर है। सो अब आपको u की वैल्यू पता है, ठीक है, और ये कितनी है 0.12 मीटर। मैंने यहाँ पहले ही माइनस लगा दिया है बिकॉज हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, नेगेटिव साइड, ठीक है। कोई भी लेंस, कोई भी मिरर, तो उसके हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, दैट मीन्स यू कैन से टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, राइट, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो वी आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो देखो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं करूंगी यूज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम लोग बताएंगे भाई 1/f जो होता है वो 1/v माइनस 1/u होता है। तो मुझे फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आई शुड बी हैविंग द इमेज डिस्टेंस, आई शुड बी हैविंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मुझे पता है बट इमेज डिस्टेंस मुझे बताना, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो v/u वैल्यू है ये कितनी है, -3। अब यहाँ पे u पुट ऑन कर दो, जैसे ही तुम u पुट ऑन करोगे तुम्हें v का वैल्यू मिल जाएगा -3 माइनस का 0.12, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेट 0.36 मीटर, ठीक है। तो अब तुम्हें माइनस माइनस पॉजिटिव मिल गया, तो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड दैट इज शोइंग यू दैट इट इज रियल, दैट इज अपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट, राइट। जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखी है उसके अपोजिट, यानी प्लस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रखी हुई है। तो 0.36 मीटर मुझे मिल गया है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, राइट। अब बचा क्या हमारे पास कैलकुलेट करना, फोकल लेंथ। सो अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यूज को पुट कर देंगे, 0.36 माइनस, है ना, और u हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है तो इट इज 0.12 मीटर, ठीक है। मीटर हम लोग अभी नहीं लिखेंगे बिकॉज ये बाद में हमें परेशान कर सकता है यूनिट्स के लिए, ठीक है। फटाफट से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऑलराइट, ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा अभी तक तो, ठीक है। 0.36 हम लोग ले लेते हैं, 0.36 से 0.36 कैंसिल, सो यू आर गोइंग टू गेट 1 हियर माइनस, ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, राइट। सो यू आर गोइंग टू गेट 3 हियर, राइट, ऑलराइट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 0.12, इट्स ऑलराइट, 0. जो भी यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस वुड बी द प्लस है। सो 1/f की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4/0.36, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे और 0 0 हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इट वुड बी 400 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है।
अब देखो फोकल लेंथ, यहाँ पर हमें 1/f का वैल्यू मिल रहा है। सो एवरी टाइम जब कभी भी हम लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अक्सर दिमाग से निकल जाता है एंड टाइम पर कि भाई हमें इसको भी एक बार जो है रिवर्स करना है। क्यों? क्योंकि हमें फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए, 1/f की नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ से क्या करें, अपोजिट करें, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तभी जाके मुझे f की वैल्यू मिलेगी। और वो मुझे कितनी मिलेगी? वो मुझे मिलेगी 36 डिवाइडेड बाय 400। So that is why I am going to get 4 9s are 36. So I would be getting 0.09 meter as the focal length. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव, यहां पर लेंथ आ रही है, फोकल लेंथ आ रही है पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या दिया है? कन्वेक्स लेंस। तो यहां से मुझे पता चल गया भाई कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। दैट मीन्स यहां पे जो मेरा आंसर आया दैट इज करेक्ट। थोड़े ऐसे छोटे छोटे साइन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जैसे आप क्या कर सकते थे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, फॉर्मूले का माइनस तो लिख दिया, लेकिन ये वाला माइनस अगर आप लिखना भूल जाते तो आपके पास कैलकुलेशन नेगेटिव नेगेटिव और अलग कैलकुलेशन आती, राइट? हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आ जाती आपको फोकल लेंथ की, तब आप वहां समझ जाते कि भाई कैलकुलेशन गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपका फोकल लेंथ आया है नेगेटिव, जो कि कन्वेक्स लेंस का नहीं होता। तो आप समझ जाओगे भाई आपकी गड़बड़ हो गई है। दैट इज वाई आपको हर एक छोटी छोटी चीज पे नजर रखनी है। अगर आपने ऐसा नजर रखा तो आपको बिल्कुल करेक्ट बात पता चलता जाएगा कि भाई जो हम कर रहे हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारा सॉल्विंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस था, मुझे पता चल गया पॉजिटिव होता है, तो आई गॉट दी करेक्ट थिंग। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है? 0.09 मीटर आ गया है फोकल लेंथ का। नोट दिस डाउन, फटाफट से नोट करेंगे इसे। ऑलराइट, चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं और लेट्स सी कि वो हम कर पाते हैं कि नहीं। चलो देखो, लाइट रेज पास थ्रू अ लेंस एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, व्हाट इज द लेंस पावर? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई लेंस की पावर क्या है। हमने फॉर्मूला देखा है, हमको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हिंट आपको जो यहाँ से लेनी है, लाइट रेज पास थ्रू अ लेंस एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं? उसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, राइट? कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो मतलब मुझे पता चल गया दैट हैज टू बी कन्वर्जिंग, राइट? दैट हैज टू बी कन्वेक्स एंड दैट इज वाई जो ये यहाँ पे आपको 50 सेंटीमीटर दिया है वो कैसा वैल्यू है? एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, देखो हमने कैसे पता किया, कन्वर्जिंग से हम गए कहां तक? कन्वेक्स, क्योंकि हमें पता है भाई कन्वर्जिंग कौन होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जो 50 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, मतलब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है जहां पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है। लेंस से लेके वो पॉइंट जहां पर लाइट कन्वर्ज हो रही है वही डिस्टेंस तो फोकल लेंथ होती है। तो इसका मतलब ये जो 50 सेंटीमीटर है वो फोकल लेंथ है और वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो पावर आएगी वो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। समझे? तो लेट्स डू इट, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर कैलकुलेट करने के लिए P 1/f, 1/f में अब देखो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/0.50 मीटर लिख देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू डिवाइड इट बाय 100, राइट? तो आई डिड दैट। ठीक है, अब पॉइंट हटेगा, ठीक है, 0 लगेगा। ऑलराइट, तो लेट इट बी, तो इट वुड बी 2 डायोप्टर।
राइट, इट वुड बी 2 डायोप्टर है। तो यहाँ पर हमें पावर आ चुकी है अपने आप, पावर इज 2 डायोप्टर, तो इट हैज़ टू बी प्लस 2d। तो ये प्लस 2d है। प्लस से अपन को पता चलेगा कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्लस से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा लेंस है, द नेचर ऑफ द लेंस इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, तो देखिए अभी आपको ये पता चला कि भाई किस तरीके से हम लेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, किस तरीके पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। और ये आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे आएगा? आपको आएगा ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से, ठीक है। कब, कैसा, डिस्टेंस, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में साइन कन्वेंशन पहले से नहीं है तो आप क्वेश्चन को करते वक्त साइन हमेशा गलत यूज करोगे। दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहली चीज, साइन कन्वेंशन को अपने दिमाग में बसा लो, ठीक है। सेकेंड चीज, जो मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किस तरफ रख रहे हैं, लेफ्ट साइड रखनी, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही लाइट रेस को हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, मेनली मानते हैं, ठीक है, कि भाई लेफ्ट से वो टूवर्ड्स राइट आ रही है। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को राइट नेगेटिव ले लेते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस लेंस का या किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, राइट। ये चीजें अगर आपको पता होंगी, पहले से पता होंगी, तो आप छोटे छोटे आइडेंटिफिकेशन, आप इन सब छोटे छोटे जो साइन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वही चीज आपको फिर मिस हो जाएगी अगर आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई दोज, टू मेक, छोटे छोटे जो साइन मिल रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना, ये चीजें तुमको सीखनी है, तभी आप अपने न्यूमेरिकल्स में काफी स्ट्रांग हो पाओगे। ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल को वीक इसीलिए मानते हैं और हो भी जाते हैं वीक इसी में, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करते, उनके दिमाग में चीजें ही नहीं होती, क्योंकि वो रिविजन ही नहीं करते। एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल तो उनको फिर भी समझ में आ सकता है, बट अगर आप किसी भी चीज को, फॉर्मूले को याद कर रहे हो, प्लस माइनस को याद कर रहे हो कि भाई इसका ये प्लस होता है, उसका वो प्लस होता है, यू आर गोइंग टू गेट दैट, तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब आपके दिमाग में होंगी एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस, उनमें मास्टरी करनी है। हाउ टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, कहाँ पे क्या रखा है, कैसे रखा है, कितना इमेज बनेगा, कितना मैग्निफिकेशन है, ये सब, ठीक है। एंड देन द मिरर फॉर्मूला। लाइट चैप्टर में मेनली अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं, ठीक है, ये दो चीजें, मतलब मिरर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना में पूरा सब कुछ अच्छे से आइडेंटिफाई करना, पावर, मैग्निफिकेशन एंड द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरीके से लेंस का पावर, मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला। अगर आप ये दोनों चीज़ों में अपना स्ट्रांगनेस बना लेते हैं तो स्कूल एग्जामिनेशन में जितनी भी आपके हाई मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जनरली इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होते हैं, तो उनमें आपके डेफिनेटली फुल मार्क्स आएंगे, राइट। अगर मैं इन न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है दैट यू आइडेंटिफाई ऑल द साइंस, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पूरा दिमाग में टेबल को याद रखो, क्योंकि बहुत ईजी है टेबल को याद रखना, राइट। तो उन टेबल को याद रखो, क्योंकि सिर्फ 2 ही याद करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर की जो टेबल है टोटली सिल्वर है, मतलब सिमिलर है कन्वेक्स लेंस का, राइट। उसी तरीके से जो कन्वेक्स मिरर की जो टेबल है वो बिल्कुल सिमिलर है कनकेव लेंस का। सो जब टेबल सिमिलर ही है तो आपको तो 2 ही टेबल रिमेंबर करनी है ना, राइट। तो 2 टेबल रिमेंबर करनी है, साइंस रिमेंबर करने हैं, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, स्पेशली इन द लाइट चैप्टर, राइट। ये चीजें रिमेंबर कैसे होंगी? रिवीजन से, बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट इनटू योर हेड, ऑलराइट। सो दैट इज द मेन थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आई लेंस, जो कि हमारे ह्यूमन आई है, राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, और उसके डिफेक्ट्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ऑलराइट। मेक श्योर यू स्टे ट्यून एंड यू स्टिक विद अस विद दैट, राइट। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर।
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.